اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ مثنى بن حارثہ نے خلیفہ سے کہا، اے امیر المومنین، فیصلہ وہی بہتر ہوتا ہے جو صلح و مشورے کے بعد کیا جاتا ہے، لیکن میں امیر المومنین سے اجازت چاہوں گا کہ جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ لوں، اور آپ میری باتیں سالاروں کے سامنے ضرور رکھیں۔ دجلہ اور فرات جہاں ملتے ہیں وہاں کے بڑے وسیع علاقے میں عربی قبیلے آباد ہیں جو سب کے سب مسلمان ہیں۔ چونکہ وہ مسلمان ہیں اس لیے وہ آگ کے پجاری بادشاہوں کے جور و ستم کا نشانہ بنے ہوتے ہیں۔ مسجدوں پر بھی ان کا حق تسلیم نہیں کیا جاتا۔ فارسیوں کے ہاتھوں ان کی جان محفوظ نہیں، ان کی عزت محفوظ نہیں۔ وہ مسلمان فصل اگاتے ہیں جو پک جاتی ہے تو آتش پرست زمیندار اور فوجی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ وہاں مسلمان مزارے ہیں اور انہیں دھتکاری ہوئی مخلوق سمجھا جاتا ہے۔ وہ مسلسل خوف و ہراس میں رہتے ہیں۔ ان کے خلاف الزام صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور کفر کے طوفان میں بھی وہ اسلام کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں۔ وہ مدینہ کو روشنی کا مینار سمجھتے ہیں۔ امیر المومنین، اگر آپ بیٹھے یہ سوچتے رہیں کہ دشمن بہت طاقتور ہے تو وہ روز بروز طاقتور ہوتا جائے گا، اور مسلمان مایوس ہو کر اپنی بھلائی کا کوئی ایسا طریقہ سوچ لیں گے جو اسلام کے منافی ہوگا۔ میرے چھاپہ ماروں نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اور آپ کی فوج کے لیے جو زمین ہموار کی ہے وہ دشمن کے حق میں چلی جائے گی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم مسلمانوں کی مدد کو نہیں پہنچا کرتے تھے؟ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم میں ان کی مدد کو پہنچوں گا۔ اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک سالار سے کہا، ولید کا بیٹا خالد کہاں ہے؟ انہیں جواب ملا، یمامہ میں آپ کے اگلے حکم کا انتظار کر رہا ہے اے امیر المومنین۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، کوئی تیز رفتار قاصد بھیجو اور اسے پیغام بھیجو کہ جلدی مدینہ پہنچے۔ فارس کی بادشاہی سے ہم اللہ کی تلوار کے بغیر نہیں لڑ سکتے۔ خلیفہ مثنى سے مخاطب ہوئے، اور تم مثنى واپس جاؤ اور عرب قبیلوں کے جس قدر آدمی اکٹھے کر سکتے ہو کر لو۔ اب تمہیں کھلی جنگ لڑنی پڑے گی، جو تم شبخون اور چھاپوں کے انداز سے بھی لڑ سکتے ہو، لیکن اپنے فیصلوں میں تم آزاد نہیں ہوگے۔ خالد سالار اعلیٰ ہوگا، تم اس کے فیصلوں کے پابند ہوگے۔ مثنى بن حارثہ نے کہا، تسلیم امیر المومنین۔ ایک اور عرض ہے، اس علاقے میں جو عرب قبیلے ہیں وہ سب کے سب مسلمان نہیں، ان میں عیسائی بھی ہیں اور دوسرے عقیدوں کے لوگ بھی۔ وہ سب آتش پرستوں کے خلاف ہیں۔ فارس کے آتش پرست ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی تو غیر مسلم عربوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے جیسا وہاں کے عرب مسلمانوں کے ساتھ ہوگا۔ امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، ایسے ہی ہوگا۔ جنہوں نے اسلام کے خلاف کچھ نہیں کیا، اسلام ان کی پریشانی کا باعث نہیں بنے گا۔ تم آج ہی روانہ ہو جاؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ اس وقت یمامہ میں تھے۔ ان کی دونوں نئی بیویاں لیلہ ام تمیم اور بنت مجاہ ان کے ساتھ تھیں۔ امیر المومنین کا پیغام ملتے ہی خالد بن ولید یمامہ سے روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچ گئے۔ خلیفہ نے خالد رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا مثنى بن حارثہ کا نام تم نے کبھی سنا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، سنا ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ فارسیوں کے خلاف اس نے ذاتی قسم کی جنگ شروع کر رکھی ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ اس کی ذاتی جنگ ذاتی مفاد کے لیے ہے یا وہ اسلام کی خاطر لڑ رہا ہے۔ امیر المومنین نے کہا، وہ یہاں آیا تھا، جہاد جو اس نے شروع کر رکھا ہے اس میں اس کا کوئی ذاتی مفاد نہیں۔ میں نے اس لیے تمہیں بلایا ہے کہ تم سے مشورہ کر لوں کہ مثنى ہم سے جو مدد مانگتا ہے وہ اسے دی جائے یا اس وقت کا انتظار کیا جائے جب ہم فارسیوں کی اتنی بڑی قوت کے خلاف لڑنے کے قابل ہو جائیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ کس قسم کی جنگ لڑ رہا ہے؟ امیر المومنین نے خالد رضی اللہ عنہ کو پوری تفصیل سے بتایا کہ مثنى شبخون کی نوعیت کی جنگ لڑ رہا ہے اور اس وقت تک وہ کئی کامیابیاں حاصل کر چکا ہے۔ خلیفہ نے کہا، اس کی سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے خالد کہ اس نے زرتشتوں کے محکوم مسلمانوں کو متحد رکھا ہے اور ان میں ایسا جذبہ پیدا کیا ہے کہ انہوں نے زرتشتوں کے ظلم و ستم میں اپنے سینوں میں اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ ابلا اور عراق کے دوسرے علاقوں میں جہاں مسلمان آباد ہیں وہ فارسیوں کے غیر انسانی تشدد کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں اپنے عقیدوں کو سینے سے لگائے رکھنا بے معنی سا بن جاتا ہے۔ وہ مسلمان صرف اتنا کہہ دیں کہ مدینہ اور اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں تو ان کے سارے مصائب ختم ہو جائیں گے۔ یہ مثنى اور اس کے چند ایک ساتھیوں کا کمال ہے کہ انہوں نے ان حالات میں بھی وہاں کے مسلمانوں کو اسلام سے منحرف نہیں ہونے دیا۔ اس کے علاوہ انہیں اپنے عقیدے کا اتنا پکا بنا رکھا ہے کہ وہ زرتشتوں کے خلاف زمیندوز کارروائیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المومنین، مثنى نے کچھ کیا ہے یا نہیں؟ مسلمان کی حیثیت سے ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جو مسلمان غیر مسلموں کے جور و ستم کا نشانہ بنے ہیں ان کی مدد کو پہنچے۔ خلیفہ نے پوچھا، کیا تم یہ مشورہ دیتے ہو کہ ہمیں ایرانیوں سے ٹکر لینی چاہیے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں امیر المومنین،
टक्कर क्यों न ली जाए। यहाँ तो सूरत हाल कुछ और है। जैसा कि आपने बताया है कि मुसन्ना ने वहाँ कुछ कामयाबियां हासिल की हैं और उसने हमारे हमले के लिए राह हमवार कर दी है। चपहून और छापे मारने वाले इतना ही कर सकते हैं जितना मुसन्ना ने किया है। वो किसी इलाके पर कब्जा नहीं कर सकते। कब्जा करना मुनज़्ज़म लश्कर का काम है। ये काम हमें हर कीमत पर करना है। अगर हमने मुसन्ना की कामयाबियों को आगे न बढ़ाया तो उसके दो नुकसान होंगे। एक ये कि ये कामयाबियां जाया हो जाएंगी और दूसरे ये कि ज़रतुश्त मुसन्ना और तमाम मुसलमानों से बहुत बुरा इंतकाम लेंगे। इसके अलावा फारसी दलेर हो जाएंगे। जैसा कि मुसन्ना ने आपको बताया है कि उसने ईरानियों को इस कदर नुकसान पहुंचाया है कि उनके हौसले मजरू हो गए हैं। अगर उन्हें दम लेने का मौका दे दिया गया तो वो अपने महकूम मुसलमानों को कत्ल कर देंगे और इस खतरे को खत्म करके वो उस सरहदी इलाके को पहले से ज्यादा मजबूत कर लेंगे। अपने इलाकों को महफूज करने के लिए वो अपनी सरहद के बाहर के इलाकों पर भी काबिज हो सकते हैं। इस खतरे से महफूज रहने की यही एक सूरत है कि हम मुसन्ना की मदद को पहुंचे और पेशतर इसके कि ज़रतुश्त हमारी तरफ बढ़े, हम उन्हें उनके अपने इलाके से भी पीछे हटने पर मजबूर कर दें। खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को ये हिदायत देकर रुखसत कर दिया कि वो अपने लश्कर को साथ लेकर इराक की तरफ पेशकदमी करें। खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, खालिद, तुम्हारे लश्कर में ज्यादा तादाद उन लोगों की है जो बड़े लंबे अरसे से घरों से दूर लड़ रहे हैं। उन्हें फारसियों जैसे ताकतवर दुश्मन के खिलाफ लड़ाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं किसी को मजबूर नहीं करूंगा। बेहतर सूरत ये होगी कि तुम रज़ाकारों की एक फौज बनाओ। उसमें ऐसे आदमियों को रखो जो मुर्तदीन के खिलाफ लड़ चुके हैं। तुम्हारे साथ कुछ ऐसे आदमी भी होंगे जो मुर्तदीन के साथ थे। शिकस्त खाकर उन्होंने अपनी खैरियत इसी में समझी कि वो इस्लामी लश्कर में शामिल हो जाएं। ऐसे किसी आदमी को अपने लश्कर में न रखना। हम बड़े ताकतवर दुश्मन को ललकारने जा रहे हैं। मैं इसलिए कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, क्या आप मुझे ये इजाजत दे रहे हैं कि उन लोगों को अपने लश्कर से निकाल दूं? खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, निकाल देना और बात है वलीद के बेटे। तुम अपने लश्कर से ये कहना कि जो आदमी अपने घर को जाना चाहता है उसे जाने की इजाजत है। फिर देखना तुम्हारे साथ कौन रहता है। अगर तुम्हारा लश्कर बहुत कम रह गया तो खिलाफत उसकी कमी को किसी न किसी तरह पूरा करेगी। जाओ वलीद के बेटे, अल्लाह तुम्हारे साथ है। खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अज़्म और ईमान के पक्के थे। उन्होंने इराक पर हमले का जो फैसला किया था उस पर वो हर हाल में और हर कीमत पर पूरा अमल करना चाहते थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु तो चाहते ही यही थे कि उन्हें लड़ने का मौका मिलता रहे। उन्होंने खलीफा के इरादे को और ज्यादा पुख्ता कर दिया। इराक के उस इलाके में जहाँ दजला और फरात मिलते हैं मुसलमानों की बस्तियां थी। ये मुसलमान मजबूरी और मजलूमियत की जिंदगी गुजार रहे थे। अब वहाँ की सूरत हाल ये हो गई कि वो पहले की तरह मजलूम और मकहूर रहे जैसे वो चलती फिरती लाशें हों। लेकिन उनके घरों में ऐसी सरगर्मी शुरू हो गई कि वो छुप छुप कर बर्छियां और कमान बनाने लगे। उन्हें मुसन्ना बिन हारिसा की तरफ से जो पैगाम मिलता था वो सरगोशियों में घर घर पहुंच जाता। मुसन्ना के छापामारों ने इराक की सरहद से दूर एक दुश्वार गुजार इलाके में अपना अड्डा बना रखा था। बर्छियां और तीर कमान जो घरों में चोरी छुपे तैयार होते थे वो रात की तारीकी में उस अड्डे तक पहुंच जाते। बस्तियों से जवान आदमी भी गायब होने लगे। ईरानियों की सरहदी चौकियों पर, उनके फौजी काफिलों पर मुसलमानों के शब खून पहले से ज्यादा हो गए। ये मुसलमान दरपर्दा एक फौज की सूरत में मुनज़्ज़म हो रहे थे और उस फौज की नफरी बढ़ती जा रही थी। यमामा में खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की फौज में सूरत हाल उसके उलट हो गई। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब अपनी फौज में जाकर ये ऐलान किया कि जो कोई अपने घर को वापस जाना चाहता है वो जा सकता है, तो उनके 10,000 नफरी के लश्कर में सिर्फ 2,000 आदमी रह गए। 8,000 आदमी मदीने को रवाना हो गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने खलीफा के नाम पैगाम लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि उनके पास सिर्फ 2,000 की नफरी रह गई है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जोर देकर लिखा कि उन्हें फौरी तौर पर कुमक की जरूरत है। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी मजलिस में बैठे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के कासिद ने उन्हें खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का तहरीरी पैगाम दिया। खलीफा ने ये खत बुलंद आवाज से पढ़ना शुरू कर दिया। इससे उनका मकसद ये था कि मजलिस में उनके जो मुशीर और दीगर अफराद थे वो सुन लें ताकि कोई मशवरा दे सके। एक मुशीर ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, खालिद के लिए कुमक बहुत जल्दी जानी चाहिए। 2,000 नफरी से ज़रतुश्तों के खिलाफ लड़ाई की सोची भी नहीं जा सकती। अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म दिया, काका बिन अमर को बुलाओ। थोड़ी देर बाद गठे हुए जिस्म का एक कदावर नौजवान खलीफा के सामने आन खड़ा हुआ। अमीरुल मोमिनीन ने उस नौजवान से कहा, काका, खालिद को कुमक की जरूरत है। तैयारी करो और फौरन यमामा पहुंचो और उससे कहो कि मैं हूँ तुम्हारी कुमक।
एक मुशीर ने हैरान होकर कहा, अमीरुल मोमिनीन, खुदा की कसम आप मजाक नहीं कर रहे। लेकिन उस सालार को जिसकी 8000 फौज उसके साथ छोड़ गई हो, सिर्फ एक आदमी की कुमक देना मजाक लगता है। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जरूरत से ज्यादा संजीदा थे। उन्होंने काका बिन अमर को सर से पांव तक देखा और सुकून की आह लेकर बोले, मुजाहिदीन के जिस लश्कर में काका जैसा जवान होगा वो लश्कर शिकस्त नहीं खाएगा। काका रज़ियल्लाहु अन्हु उसी वक्त घोड़े पर सवार हुए और मदीने से निकल गए। मशहूर मौरिख तबरी, इब्ने इसहाक वाक़िदी और सैफ बिन उमर ने ये वाक़या बयान करते हुए लिखा है कि इससे पहले भी एक ऐसा वाक़या हो चुका था। एक सालार इयाज बिन ग़नम ने मुहाज से मदीने में कासिद भेजा था कि कुमक की जरूरत है। खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सिर्फ एक आदमी अब्द बिन आहफ अल हुमैरी को कुमक के तौर पर भेजा। उस वक्त भी अहले मजलिस ने हैरत का इजहार किया था और अमीरुल मोमिनीन ने यही जवाब दिया था कि जो काका को खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास भेजने पर दिया। हकीकत ये थी कि खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को मायूस नहीं करना चाहते थे, लेकिन मदीने में कुमक नहीं थी। सिर्फ यही एक महाज नहीं था। उस वक्त तमाम के तमाम मशहूर सालार मुख्तलिफ महाजों पर लड़ रहे थे और ये सारी जंग इर्तिदाद के खिलाफ लड़ी जा रही थी। इस्लाम के दुश्मन देख चुके थे कि मुसलमानों को मैदान जंग में शिकस्त देना बड़ा महंगा सौदा है। चुनांचे इस्लाम को कमजोर करके खत्म करने का उन्होंने ये तरीका इख्तियार किया कि कई अफराद ने नबूवत का दावा कर दिया और अपने अपने तरीकों से पैरोकार बना लिए। मुतअद्दिद ऐसे कबीले जो इस्लाम कबूल कर चुके थे, इस्लाम से मुनहरिफ हो गए और इस्लाम से इनहिराफ का ये सिलसिला तेज होता जा रहा था। इर्तिदाद के फितने के पीछे यहूदियों का हाथ था। खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत उसी फितने के खिलाफ बरसरे पैकार रही। उस फितने को वाज़ों और तबलीगी लेक्चरों से नहीं दबाया जा सकता था। इसके लिए मुसल्ला जिहाद की जरूरत थी। ये जंगी पैमाने की मुहिम थी जिसे सर करने के लिए मदीना फौज से खाली हो गया। कमजोर महाजों को कुमक देने के लिए दूसरे महाजों से फौज भेजी जाती थी। अमीरुल मोमिनीन ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को सिर्फ एक आदमी देने पर इक्तिफा न किया। उन्होंने दो ताकतवर कबीलों मफर और रबिया के सरदारों को पैगाम भेजे कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को ज्यादा से ज्यादा आदमी दें। काका बिन अमर जब खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुंचे तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने खेमे में गुस्से से टहलते हुए कहा, सिर्फ एक आदमी, सिर्फ एक आदमी। क्या मैंने अमीरुल मोमिनीन को बताया नहीं कि मेरे पास सिर्फ 2000 लड़ने वाले रह गए हैं और खिलाफत मुझसे तवक्को रखती है कि मैं फारिस की उस फौज से टक्कर लूं जो जिर्रा में डूबी हुई है। काका रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मेरे सालार, मैं 8000 की कमी पूरी नहीं कर सकता। खुदा की कसम कोई कमी रहने भी नहीं दूंगा। वक्त आने दें। जिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ता हूँ उसकी रूह मुकद्दस के आगे तुम्हें शर्मसार नहीं होने दूंगा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, मैं यमामा में बैठा नहीं रहूंगा। उन्होंने ऐसे कहा जैसे अपने आप से बात कर रहे हो। मुसल्ला मेरा इंतजार कर रहा होगा, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन खालिद खामोश हो गए। उन्होंने ऊपर देखा और सरगोशी में कहा, खुदा अज़्ज़वजल, मैंने तेरे नाम की एक कसम खाई है, अपने नाम की खातिर मेरी मदद कर। मुझे हिम्मत और इस्तक़लाल अता फरमा कि मैं उस आग में कूद कर उसे ठंडा कर दूं जिसकी ज़रतुश्त इबादत करते हैं। मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा इबादत के लायक कोई नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे रसूल है। लैला ने कहा, क्या तू हिम्मत हार रहा है वलीद के बेटे? क्या तूने नहीं कहा था कि अल्लाह की राह में लड़ने वालों की अल्लाह मदद करता है? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं शिकस्त का आदी नहीं, अल्लाह मदद करेगा। खुदा की कसम मैं जाहो जलाल का तलबगार नहीं। मुझे फारिस के बादशाह का तख्त नहीं चाहिए, मुझे वो जमीन चाहिए जो अल्लाह की है और उस पर बसने वाले अल्लाह और उसके रसूल के नाम लेवा होंगे। वो 2000 मुजाहिदीन जो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ रह गए थे, यमामा के एक मैदान में खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ खड़े थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु घोड़े पर सवार थे। अपनी उस कलील फौज से बड़ी बुलंद आवाज से मुखातिब हुए, मुजाहिदीन इस्लाम, अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम का नाम दूर दूर तक पहुंचाने के लिए चुना है। वो जिन्हें अपने घर और अपने मालो अयाल अजीज थे वो चले गए हैं, हमें उनसे गिला नहीं। उन्होंने खाक खून के रास्तों पर हमारा साथ दिया था। बड़े लंबे अरसे तक वो हम सफर रहे थे। अल्लाह उन्हें जिहाद का सिला अता फरमाए। तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसका अजर मैं नहीं, अल्लाह देगा। हम बहुत ही ताकतवर दुश्मन पर हमला करने जा रहे हैं। मत देखो हमारी तादाद कितनी है। बदर के मैदान में तुम कितने और कुरैश कितने थे? उहुद में भी मुसलमान थोड़े थे। मैं उस वक्त मुसलमानों के दुश्मन कबीले का फर्द था। तुम में भी ऐसे मौजूद हैं जो कबूल इस्लाम से पहले बदर के मैदान में मुसलमानों के खिलाफ लड़े थे। क्या हमने कहा नहीं था कि इन थोड़े से मुसलमानों को हम घोड़ों के सुमो तले कुचल डालेंगे? क्या तुम्हें याद नहीं कि हम जो तादाद में बहुत ज्यादा थे
उनके हाथों पसपा हुए जो तादाद में बहुत थोड़े थे। क्यों ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि मुसलमान हक पर थे और अल्लाह हक परस्तों के साथ है। आज तुम हक परस्त हो। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में एक कागज था, वो उन्होंने खोलकर अपने सामने किया। फिर कहा, अमीरुल मोमिनीन ने हमारे नाम एक पैगाम भेजा है। उन्होंने लिखा है कि मैं खालिद बिन वलीद को फारसियों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए भेज रहा हूँ। तुम सब खालिद की क़यादत में उस वक्त तक जंग जारी रखोगे जब तक तुम्हें खिलाफत की तरफ से हुक्म नहीं मिलता। खालिद का साथ न छोड़ना और दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों न हो, बुज़दिली न दिखाना। तुम उनमें से हो जिन्होंने इस इजाजत के बावजूद कि जो घरों को जाना चाहते हैं जा सकते हैं, अल्लाह की तलवार का साथ नहीं छोड़ा। तुमने अपने लिए वो रास्ता मुंतखब किया है जो अल्लाह की राह कहलाता है। तसव्वुर में लाओ उस सवाब अजीम को जो अल्लाह की राह पर चलने वालों को मिलता है। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। तुम्हारी कमी वही पूरी करेगा। उसी की रजा और खुशनुदी के तलबगार रहो। एक मौरिख इज़्दी ने इस खत का पूरा मतन अपनी तारीख में दिया है। मालूम नहीं इब्ने खुल्दून और इब्ने असीर ने, जिनकी तहरीरें मुस्तनद मानी जाती हैं, इस खत का जिक्र क्यों नहीं किया। उन 2000 मुजाहिदीन को किसी वास की या इश्तियाल अंगेजी की जरूरत नहीं थी। ये तो रज़ाकाराना तौर पर खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ रह गए थे। उनमें बेशतर ऐसे थे जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत की और इस्लाम कबूल किया और आप अलैहिस्सलाम की क़यादत में लड़ाइयाँ लड़ी। आप अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद वो यूं महसूस करते जैसे आप अलैहिस्सलाम की रूह मुक़द्दस उनकी क़यादत कर रही हो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन शहदाइयों ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की इजाजत से एक काम ये भी किया कि घोड़ों पर सवार होकर यमामा के गिरदोनिवाह में निकल गए और बस्ती बस्ती जाकर लोगों को घुड़सवारी के मुख्तलिफ करतब दिखाने लगे। मसलन दौड़ते घोड़ों से उतरना और सवार होना, सरपट दौड़ते घोड़ों से निशाने पर तीर चलाना, नेज़ाबाजी और घोड़ों को दौड़ाते हुए तेगज़नी के कमालात। वो जवानों को फौज में भर्ती होने पर उकसाते और उन्हें बताते कि जंग में जाकर उन्हें क्या क्या फायदे हासिल होंगे। इसके अलावा उन लोगों को ये भी बताते थे कि वो फौज में भर्ती न हुए तो ईरानी आकर उन्हें अपना गुलाम बना लेंगे, जो उनसे बेगार लेगी, उन्हें देंगे भी कुछ नहीं और उनकी जवान बहनों, बीवियों और बेटियों को भी अपने कब्जे में ले लिया करेंगे। उस खित्ते ने ईरानियों का दौरे हुकूमत देखा था। फिर उन्होंने झूठे पैगंबरों की शुभबाजियां देखी थी और अब वो मुसलमानों की हुकूमत देख रहे थे। मुसलमानों ने उन्हें गुलाम बनाने की कोशिश नहीं की थी। उनके अंदाज, तौर तरीके और रहन सहन बादशाहों जैसे या हुक्मरानों जैसे नहीं थे। वो आम लोगों की तरह रहते, आम लोगों के साथ बातें करते और उनकी सुनते थे। उनकी औरतों की इज्जत महफूज थी। उन लोगों में वो भी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन मुसलमा जैसे शुबदेबाज ने उन्हें गुमराह किया और इस्लाम के रास्ते से हटा लिया था। उन्होंने मुसलमा की नबुव्वत को मुसलमानों के हाथों बेनकाब होते देखा और मुसलमा की जंगी कुव्वत को मुसलमानों की कलील नफरी की बेजिगरी के आगे रेजा रेजा होते देखा था और वो महसूस कर रहे थे कि सच्चा अकीदा और नजरिया इस्लाम ही है, जो झूठ की ताकतों को कुचल देता है, और वो गैबी ताकत जो सच्चे को झूठे पर, हक को बातिल पर फतह देती है, वो इस्लाम में मुज़मिर है। चुनाचे ये लोग खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की फौज में शामिल होने लगे। ये खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के मुजाहिदीन की कोशिशों का हासिल था। Islamic Showbiz Status